بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی بچوں شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مضمون ہے تاریخ برائے جماعت ہشتم، یعنی 8 کلاس کی ہم لوگ جو ہیں وہ ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ ہے نمبر 1، یعنی باب اول ہے ہمارے پاس، لیکچر نمبر 7 ہے۔ تو بچوں آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم جائیں گے پریویس جو ہمارا لیکچر تھا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کا حوالہ دیکھیں گے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا معاشرتی پالیسی، یعنی انگریزوں نے جب بر صغیر پاک و ہند پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد ان کی معاشرتی پالیسی، سوشل جو پالیسی تھی وہ کیا تھی۔ اس کے بعد ہم نے اقتصادی پالیسی پڑھی، یعنی اکنامک پالیسی ان کی کیا تھی، اکنامکلی لحاظ سے یعنی فائنینشیل لحاظ سے، مالی لحاظ سے انہوں نے کیا پالیسیز اپنائی۔ مواصلات کا نظام انہوں نے بنایا، یعنی کمیونیکیشن سسٹم جو رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ کیا کیا ان کے لیے، اس کے لیے جو ہے برقی ٹیلی گراف کا نظام متعارف کروایا۔ اسی طرح جو ہے ریلوے لائن کا جو ہے نظام متعارف کروایا۔ مواصلاتی نظام کے فوائد کیا ہوئے، یعنی ان کو جو ہے وہ ترقی کے جو ہے فوائد، ترقی جو ہے کافی زیادہ ہوئی ان سے۔ اسی طرح جو ہے آخر میں ہم لوگوں نے جو ہے مشقی سوالات میں تفصیلی سوال نمبر 1 اور 2 کیے تھے۔ یہ تو ہمارا پریویس لیکچر تھا جو ہم نے دیکھا۔ کا لیکچر میں بچے آپ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک ہے، یعنی گھر میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس میں سے سوال نمبر 1 ہے باب اول کا کہ خالی جگہ کو پر کریں، دوسرا ہے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ تو یہ آپ نے جو ہے خود ہی کرنا ہے بک کی مدد سے، اور ساتھ میں جو ہے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ تو یہ آپ کے پاس جیسے فار ایگزامپل یہ ایک لکھا ہوا ہے، پاک و ہند میں پہلا سرکاری قانونی ایکٹ ڈیش کہلاتا ہے۔ اس کا آنسر ہے 1858، نمبر 2 1861، نمبر 3 1892، نمبر 4 ہے 1909۔ تو اس میں سے صحیح ایک آپشن ہے، آپ نے اس پہ جو ہے وہ سرکل کرنا ہے یا ٹک کرنا ہے، سرکل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی آپ نے جو ہے خود ہی فل کرنا ہے۔ آج کی بات کریں گے، جو ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے، وہ ہے صفحہ نمبر 21 پہ، وہ ہے ایکٹ 1861، 1892، 1909، 1919 کے تحت ہندوستانیوں کے اختیارات کی بتدریج منتقلی، یعنی آہستہ آہستہ منتقلی، اس کے بارے میں ہے۔ کوانٹم آف ڈیولیوشن آف پاور ٹو انڈین تھرو ایکٹ 1861، 1892، 1909 اینڈ 1919، ٹھیک ہے۔ کوانٹم کہتے ہیں مقدار کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ڈیولیوشن کا مطلب ہوتا ہے سپردگی، یعنی جب ہم کوئی خاص جو کچھ اختیارات ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں کسی کو، حوالے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اختیارات جو انڈین کو دیتے ہیں، یعنی ہندوستانیوں کو دیتے ہیں تھرو ایکٹس کے ذریعے، ایک قانون کے تحت، تو ہم اس کے بارے میں آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ ایکٹ یا قانون جو ہے یہ کیا چیز ہوتا ہے۔ ایکٹ اصل میں ایک قسم کی قانون ہوتی ہے یا آئین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگریز حکومت نے کیا کیا تھا کہ بر صغیر میں سیاسی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ قوانین بنائے، تو اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک ایکٹ بھی بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، قانون بنائے ہوئے تھے، اور جس کے تحت جو ہے وہ اختیارات جو ہے دیے جاتے تھے۔ تو ساتھ کریں گے، ہمارے پاس باب اول ہے، صفحہ نمبر 22 ہے، انڈین کونسل ایکٹ 1861، یعنی انڈین کونسل ایکٹ جو پہلا تھا ہمارے پاس قانون تھا وہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس ایکٹ کو قانون بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو ہے قانون بنایا جاتا ہے، کون بناتا ہے؟ قانون ساز اسمبلی بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے، تو یہ جو ہے قانون بناتی ہے لوگوں کے لیے، جو کسی ملک کے لیے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، جو کسی ملک کا قانون ساز ادارہ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو برٹش حکومت نے کیا کیا، جب وہ بر صغیر پاک و ہند پر آئے تو انہوں نے جو ہے اب حکومت کو اور مزید جو ہے مضبوط کرنے کے لیے کچھ قانون بنائے کہ اس قانون کے تحت ہم نے حکومت کو چلانا ہے، ایک ملک کو چلانا ہے۔ پاک و ہند کے لیے ایکٹ برطانیہ کا جو قانون ساز ادارہ تھا وہ منظور کرتا تھا، یعنی برطانیہ جو کہ اپنی ملک میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے قانون بناتے تھے پاک و ہند کے لیے، اور برٹش جو وائسرائے ہوتے تھے وہ یہاں پہ اس کو لاگو کرتے تھے۔ جنگ آزادی کے بعد پہلا قدم جو تھا وہ انڈین کونسل ایکٹ تھا، یعنی سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، انڈین کونسل ایکٹ بنایا۔ یہ جو ہے ایکٹ، ایک قانون، یہ کیا تھا جس کے ذریعے جو ہے وائسرائے کے قانون ساز ادارے اور ان کے اختیارات میں اصلاحات کی گئی۔ وائسرائے جو کہ پورے جو ہے ہندوستان کو چلاتا تھا اس کو کہا جاتا تھا نا رولر جو ہوتا ہے۔ انگریزوں نے اپنی حکومت کو زیادہ جمہوری بنانے کی کوشش کی۔ جمہوری کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ اختیارات جو ہوتے ہیں وہ عوام کے پاس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی ڈیموکریسی کو لانے کی کوشش کی، جمہوریت کو جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ جنگ آزادی کے بعد 58 کی اہم وجہ ہندوستانی کے سیاسی نظام میں شریک نہ کرنا بھی تھا، یعنی اگر ہم جنگ آزادی کی وجوہات دیکھیں تو اس میں سے کہتے ہیں یہ وجہ بھی تھی
کہ اس ٹائم میں جو ہے برصغیر पाक و हिंद में अंग्रेजों ने जो है वो हिंदुस्तानियों को सियासी निज़ाम में, पॉलिटिकल निज़ाम में कोई जो है हिस्सा नहीं दिया था, उनको कोई राइट नहीं दिए थे। ठीक है, इस कानून के जरिए हिंदुस्तानियों को सियासी उमूर में शिरकत के मौके फराहम किए गए। इस कानून का मकसद क्या था, ये क्यों बनाया गया था, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकली लिहाज से यानी हुकूमत के थोड़े बहुत इख्तियारात में जो है अवाम अपनी राय दे सके। कानून साज कौंसलों के अरकान में इजाफा किया गया और कानून साजी जो करते हैं उनके जो काउंसलर्स होते हैं उनके अरकान जो है उनमें इजाफा किया गया। यानी कानून साज जो काउंसिल्स होती हैं यानी कानून साज जो बनाते हैं उनके अरकान जो है उनमें इजाफा किया गया, यानी उनके मेंबरान में जो है इजाफा किया गया, उनमें हिंदुस्तानियों को नुमाइंदगी दी गई और यहाँ पे भी हिंदुस्तानियों को जो है वो नुमाइंदगी दी गई। मद्रास और बम्बई में भी कानून साज कौंसलें कायम की। गवर्नर जनरल को इख्तियार दिए गए किस किस्म की कौंसलें जो है सरहद और पंजाब में भी कायम करें। मद्रास में भी जो कि आजकल चेन्नई है और बम्बई में भी जो है वो कानून साज कौंसलें की गई, यहाँ पे भी जो है कानून साज इदारे जो है वो कायम किए गए ताकि लोगों को जो है इख्तियारात मुंतकिल हो सकें। हमारे इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 सफा नंबर 22 पे ही है। ठीक है, इस एक्ट के साथ क्या हुआ था कि इसमें भी जो है अवाम की शिरकत को ज्यादा यकीनी बनाया गया था। हिंदुस्तान में इंतखाबी निजाम को, इंतखाबी जो इलेक्शन निजाम होता है उसको बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। ठीक है, कौंसिलों को चंद मालियाती इख्तियारात दिए गए। मालियाती यानी जो फाइनेंस होते हैं, इकोनॉमी के लिहाज से होते हैं, जो माली लिहाज से इख्तियारात होते हैं वो भी जो है दिए गए। और हिंदुस्तान को मरकज जो हुकूमत होती है और सूबों में जो हुकूमत होती है उसमें भी ज्यादा नुमाइंदगी दी गई, यानी उनमें भी लोगों को, हिंदुस्तानियों को जो है वो शरीक किया गया, हिंदू मुस्लिम्स दोनों को जो है वो शरीक किया गया। और इसी तरह वाला है वो है तीसरा वाला सफा नंबर 23 पे है कानून हुकूमत हिंद 1909, जिसको मॉन्टेगो जो है मिंटो माले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, इस आईनी इसका मकसद क्या था, क्योंकि ये जो है उस टाइम में मिंटो माले इसलिए इसको कहा जाता है कि उस टाइम में हिंदुस्तान के जो वज़राए थे वो लॉर्ड मिंटो वो थे, इनका नाम था। ठीक है, और बरतानिया की काबीना के जो वजीर थे, जो बरतानिया की काबीना होती थी, वजीर हिंद जो होते थे, जो बरतानिया की काबीना में एक वजीर होता था जो हिंदुस्तानी उमूर को देखता था, उसे जो है अमूर हिंद कहा जाता है, वो मार्ले थे। तो इस वजह से मिंटो मार्ले इस्लाहात इसको दिया गया, यानी इन दोनों ने मिलकर जो है ये कानून बनाया था। किसने? लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो कौन थे? वो हिंदुस्तान के वॉसराय थे, जबकि मार्ले जो थे, मार्ले उस टाइम में हिंदुस्तान के इंतजामी उमूर के जो है वो वजीर थे बरतानिया काबीना में। तो इस वजह से इनको जो है मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे अहम जो था वो ये था कि कानून साज इदारों में जो है मजीद इस्लाहात की गई, इनके इख्तियारात में इजाफा किया गया, सूबों में कानून साज इदारों में जो है मस्बत तब्दीलियां की गई, यानी पॉजिटिव जो है वो चेंजिंग्स की गई हैं। कई सूबों में कानून साज इदारों के अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। इस तरह मरकज और सूबों के कानून साज कौंसलों में हिंदुस्तानियों को मजीद नुमाइंदगी मिली। इस कानून के तहत मुसलमानों को जुदागाना तर्ज इंतखाब का हक दिया गया। जुदागाना तर्ज इंतखाब का मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्शन। ठीक है ना, इलेक्टोरेट, यानी मुसलमानों के लिए जुदागाना तर्ज इंतखाब, मुसलमानों हिंदुओं के लिए अलग अलग इंतखाबात जो है, यानी एक किस्म का इसका मकसद क्या था, यानी मुसलमानों की जो अलग कौमियत है उसको तस्लीम किया गया। ठीक है, तो इस वजह से उनको जो है जुदागाना तर्ज इंतखाब का हक भी दिया गया, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है इसमें नाफिज किया गया। गवर्नर जनरल के इंतजामी काउंसिल में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल की होती थी, जो इसका इंचार्ज होता था, उसमें हिंदुस्तानियों को पहली बार जो है नुमाइंदगी मिली। और इसी तरह मिस्टर SP सिन्हा जो थे वो पहला हिंदुस्तानी थे जिसे इंतजामी काउंसिल में शामिल किया गया। इंतजामी काउंसिल वही काउंसिल होती थी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी। गवर्नर जनरल उसके सरबराह होते थे और इंतजामी उमूर को चलाने के लिए जो है ये काउंसिल बनाई जाती थी। इसी तरह कानून में से जो है बात करेंगे वो सफा नंबर 23 पे है, वो हमारे पास है कानून हुकूमत हिंद 1919, जिसको मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो बंदों ने भी इसी तरह बनाया था। इस एक्ट के तहत जो है वो साबिक एक्ट की हामियों का अजाला किया गया, यानी इससे पहले जितने भी एक्ट बनाए गए, कानून बनाए गए, उसमें जो थोड़ी बहुत कमी पेशियां थी उसको दूर करके इसमें जो है और भी बेहतर बनाया गया। इसके रूह से जो है मरकज में 2 ऐवानी, अच्छा याद रखिएगा, 2 ऐवानी का मतलब होता है बाई कैमरल। ठीक है, BICAMERAL, बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब होता है 2। ठीक है, कैमरल का मतलब होता है लेजिस्लेचर, यानी 2 कानून साज इदारे जो है वो कायम किए गए। इसकी मिसाल हमारे पास जैसे नेशनल असेंबली है पाकिस्तान में और सेनेट है। ठीक है, तो इसी तरह मरकज में भी जो है वो 2 ऐवानी कानून साज, और इनका काम क्या होता है? कानून साजी करते हैं इदारे जो है, जिसको मुकन्नना भी कहते हैं लेजिस्लेचर, LEGIS लेजिस्लेचर, ATURE लेजिस्लेचर। ठीक है, वजूद में जो है वो वजूद में आई। इसमें बाज अरकान जो है मुंतखब होते थे, जबकि बाज जो है वो नामजद होते थे। इसी तरह जो है वोटरों के लिए भी, वोटर्स जो होते थे, जो वोट कास्ट करते थे, वोट डालते थे, उनके लिए भी कुछ शराइत रखी गई।
मरकजी मुकर्रना के इख्तियारात में इजाफा किया गया। सूबों में 2 अमली निज़ाम, यस ये ज़रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अमली निज़ाम, जिसका मतलब होता है डायरी DIARCHY, डायरेक्टरी सिस्टम। डायरेक्टरी का मतलब होता है रूल ऑफ 2, यानी डबल रूल, ठीक है। डबल रूल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते हैं और जो और होते हैं वो कौन होते हैं? पॉपुलर मिनिस्टर्स होते हैं, यानी बाज़ वज़रा बराह रास्त गवर्नर के तहत काम करते थे। गवर्नर जो मुल्क को चलाता था उसके तहत काम करते थे, और बाज जो है सूबाई असेंबली से लिया जाता था, ठीक है। और उनको कुछ जो है वो सूबाई, एक जो है मरकज में कुछ मेम्बरान जो होते थे मरकज में गवर्नर के जो है मातहत होते थे, यानी उनके जेरे असर जो है वो काम करते थे। जबकि कुछ मिनिस्टर्स जो है वो सूबाई असेंबली से लिए जाते थे और गवर्नर के ताबे ना थे, यानी गवर्नर को जो है वो आंसरेबल नहीं थे। बहरहाल ये एक्ट साबिरा एक्ट से ज्यादा जमहूरी था। इनका जो ये 2 अमली निज़ाम है ये ज्यादा कामयाब ना हो सका, ठीक है ना, जिस तरह इसको दिखाया जाता था। यानी एक अपर हाउस था और एक जो है वो लोअर हाउस था। अपर हाउस जो है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, जबकि लोअर हाउस जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी इनकी, ठीक है। फिर इसमें वो क्या कहते हैं कि इस पे काफी ज्यादा तनकीद भी की। सूबों में काउंसिलों के तकरीबन 70% अरकान जो है वो मुंतखब होते थे, जिससे ये अंदाजा होता है कि अवाम को मौसर तौर पर वोट का हक दिया गया, यानी अवाम के पास राइट टू वोट था। अब वो जो है वो वोट जो है वो कास्ट कर सकते थे। सिखों को भी, सिख जो अकलियत में थे यानी माइनॉरिटी में थे, ठीक है ना, कम तादाद में थे, उनको भी जुदागाना इंतखाब का हक दिया गया। तो इस वजह से ये एक्ट जो है वो काफी ज्यादा जमहूरी था बनिस्बत और एक्ट है, क्योंकि इसमें जो है जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो अकलियत होते थे, उनको भी हक दिया गया है जुदागाना इंतखाब का। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वजीर उमूर हिंद जो होता था उसके इख्तियारात कम किए गए। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो कि उमूर हिंद होता था बरतानिया की काबीना में, उसके इख्तियारात जो है वो कम किए गए, और ये इख्तियारात जो है वो किसको दिए गए? हिंदुस्तानी हुकूमत को जो है वो हासिल हुए, यानी ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो हुकूमत को दिए गए, हिंदुस्तानियों को दिए गए, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे मशकी सवालात के। तफसीली सवालात हमने कुछ देखने हैं इस बाब के जो इसी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारे पास सवाल है, तफसीली सवाल नंबर 3 है, अंग्रेजों की तालीमी पॉलिसी के मकासद और नताइज पर बहस करें। इसका जवाब है अंग्रेजों के निज़ाम तालीम के मकासद दर्ज झेल हैं। नंबर 1, अंग्रेज चाहते थे कि जदीद निज़ाम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम को भी जो है लाजमी करा दिया जाए। इस निज़ाम तालीम का एक मकसद मिशनरी भी था, जहाँ पे ईसाइयत के लिए बहुत ज्यादा काम करना था, ठीक है ना, ईसाइयत मजहब के लिए, ताकि ईसाइयत की प्रचार के लिए रास्ता हमवार किया जाए। नंबर 3, मुसलमानों को जदीद अंग्रेजी तालीम में रंगने की कोशिश की गई। नंबर 4, अंग्रेजी तालीम का मकसद अच्छे मुलाजमीन पैदा करना था, ताकि हुकूमत को तूल दिया जा सके, यानी उसको बढ़ाया जा सके, हुकूमत का जो दौरानिया है उसको और भी बढ़ाया जा सके। इसके नताइज क्या हुए? पाक और हिंद के लोग अंग्रेजी जुबान से ज्यादा वाकफियत हासिल करने लगे, यानी बहुत ज्यादा जो है असर हुआ उन पर अंग्रेजी जुबान का, वो बहुत ज्यादा जानकारी हासिल करने लगे, जिसका असर आज तक कायम है और उसे बरतरी हासिल है। ईसाई मुबल्लिगीन ने मशीनरी तालीम इदारों के जरिए मजहबी मकासद हासिल किए। मुसलमानों के निज़ाम तालीम को निशाना बनाया गया। साइंस के फरोग से मुसलमानों ही को फायदा हुआ। हमारे पास सवाल नंबर 4 है तफसीली, मुख्तलिफ कवानीन के तहत हिंदुस्तानियों को इंतकाल इक़्तिदार के इक़दामात बयान करें। जवाब है इसका, जंग आज़ादी के बाद पाक हिंद के लिए पहला एक्ट इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 था। इस कानून के जरिए हिंदुस्तानी को सियासी उमूर में शिरकत के मौके फराहम किए गए। एक्ट के जरिए हुकूमती उमूर में अवाम की ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान में इंतखाबी निज़ाम को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। कानून हुकूमत हिंद 1909 को मिंटो मार्ले इस्लाहात भी कहा जाता है। इस कानून के तहत कानून साज इदारों में इस्लाहात की गई। इनके इख्तियारात में जो है वो इजाफा किया गया, यानी क्या किया गया, इनके इख्तियारात जो थे बहुत ज्यादा जो है वो मजीद जो दे उसको भी जो है वो इस्लाहात की गई थी ना, और मुसलमानों को जुदागाना तर्ज का इंतखाब भी दिया गया। तो ये तो हमारे पास सवाल नंबर 4 था। आज का लेक्चर का थोड़ा सा खुलासा हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो उसमें सबसे पहले हमने एक्ट के बारे में पढ़ा, 1861 के बारे में, 1892 के बारे में, 1909 के बारे में, और आखिर में 1919 के बारे में जो कानून बनाए गए थे। इन चारों को हमने उसको आराम आराम से यानी एक एक करके जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमने तफसीली सवालात देखे, उसमें से सवाल नंबर 3 और 4 को भी हमने देखा, ठीक है। तो हमारा आज का जो है वो लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आखिर में वही दुआ है कि जहां रहें खैरियत से रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।